مسیح میں آپ سب کو سلام۔ پاک کلام میں سے ہمارے لیے آج کی خوشخبری، نئے عہد نامہ میں سے مقدس یعقوب کا عام خط، اس کا 5واں باب، اس کی 13ویں آیت سے خدا کا کلام سنیں گے۔ اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو دعا کرے، اگر خوش ہو تو حمد کے گیت گائے، اگر تم میں کوئی بیمار ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے اور وہ خداوند کے نام سے اس کو تیل مل کر اس کے لیے دعا کریں۔ جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے باعث بیمار بچ جائے گا اور خداوند اسے اٹھا کھڑا کرے گا، اور اگر اس نے گناہ کیے ہوں تو ان کی بھی معافی ہو جائے گی۔ بس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ شفا پاؤ۔ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، اس نے بڑے جوش سے دعا کی کہ مینہ برسے، چنانچہ 3.5 برس تک زمین پر مینہ برسا۔ پھر اس نے دعا کی تو آسمان سے پانی برسا اور زمین میں پیداوار ہوئی۔ خدا کے مقدس پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی خاص برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو، آمین۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج ہم دعا کے ہی ٹاپک پر غور کریں گے، اور مقدس یعقوب جو کہ ایک بہت ہی دعا گو شخص تھے، رشتے میں یہ خداوند یسوع مسیح کے بھائی لگتے تھے، اور ان کا خط وہ تمام خطوط سے ایک منفرد ہے، اور اس حوالے سے منفرد ہے کہ انہوں نے ایمان اور عمل کی بات بہت زیادہ کی ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے، ویسے ہی ایمان بھی اگر اس کے ساتھ عمل شامل نہیں تو وہ اپنی ذات سے مردہ ہے، جیسے یہ دوسرے باب کی 26 آیت ہے۔ اس میں انہوں نے کافی مضامین ان پر بات کی ہے، اور خط کے اینڈ میں وہ دعا کے مضمون کو بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمیں کون سے موقعوں پر دعا کو کرنا چاہیے۔ دعا کرنے کا مطلب ہے کہ خدا کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ ہم جب بھی دعا کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم خدا کو یاد کر رہے ہیں، خدا کو ہم بھولے نہیں ہیں، خدا کو اپنے دکھ میں، سکھ میں، غم میں، پریشانی میں، ہر قسم کے حالات میں ہم خدا کو کہہ رہے ہیں، ہم خدا کو پکار رہے ہیں، ہم خدا کے ہی آگے جھک رہے ہیں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ایماندار ہونے کی بہت بڑی نشانی ہے۔ ایماندار ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ایماندار پہ دکھ آئے، خوشی آئے، غم آئے، تکلیف آئے، وہ سب سے پہلے دعا میں جھک جائے گا۔ اور یہاں لکھا ہے مقدس یعقوب کا عام خط، اس کا 5واں باب 13ویں آیت میں لکھا ہے، اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو دعا کرے۔ یہاں سب سے پہلے خود دعا کرنے کی تحریک دی گئی ہے کہ اگر ہم مصیبت میں پڑیں، مصیبت کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے، وہ بیماری کی شکل میں ہے، وہ حالات خراب ہو گئے، وہ غربت آ گئی ہے، پریشانی آ گئی ہے، کسی بھی طرح سے ہم مصیبت میں پڑے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں خود دعا کرنی ہے۔ یہاں پر وہ پہلے نمبر پر ایک شخصی دعا کی بات کرتا ہے کہ شخصی دعا مصیبت میں، وہ شخص جو مصیبت میں پڑا ہے سب سے پہلے وہ دعا کرے۔ پھر آگے لکھا ہے کہ اگر وہ خوش ہو تو حمد کے گیت گائے۔ یہاں پر بھی انفرادی بات ہے، یہاں پر بھی اگر میں خوش ہوں تو مجھے خدا کی ستائش، اس کی پرستش، اس کی حمد کے گیت گانے ہیں، اس کے نام کو جلال پیش کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں خوش ہوں تو میں دنیاوی عیش و عشرت میں پڑ جاؤں، دنیاوی خواہشات میں جو گناہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں ان میں پڑ جاؤں۔ اگر میں خوش ہوں تو میں خداوند کی ستائش کروں، گیت گاؤں، پرستش کروں، اور اگر میں مصیبت میں ہوں تو میں سب سے پہلے دعا خود کروں، اور پھر دوسروں سے بھی ریکویسٹ کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے 14ویں آیت میں کہ اگر تم میں کوئی بیمار ہے، اب وہ کلیسیا کی طرف آ گیا، وہ انفرادی طور پر بات کرتے کرتے اب وہ اجتماعی طور پر، کلیسیائی طور پر خاندانوں کی طرف آ گیا ہے کہ اگر تم میں کوئی بیمار ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے اور وہ خداوند کے نام سے اس کو تیل
तेल मल कर उसके लिए दुआ करें। और यहाँ मुझे लगता है मेरे अजीज़ों, जब हम दूसरों से दुआ की दरख्वास्त करते हैं तो सबसे पहले जो दरख्वास्त करने वाले के अंदर बात आती है वो आजिज़ी आती है। और फिर ये भी आता है कि मुझे दूसरों की ज़रूरत है, कि मुझे दूसरों की दुआ की ज़रूरत है। मेरे लिए मेरी ही दुआ काफ़ी नहीं है, बल्कि मुझे दूसरों से भी रिक्वेस्ट करनी है। और जब हम ऐसा रवैया इख्तियार करते हैं तो सच में हम वाकई दुआ के मकसद को, दुआ के मतलब को और खुदाई तरीके को समझ गए हैं कि अगर हमारी बीमारी ठीक नहीं हो रही तो हम दूसरे से भी रिक्वेस्ट करें। और यहाँ लिखा है कलीसिया के बुजुर्गों को, यानी सीनियर्स, यानी जो दुआ में ज़्यादा आपसे भी आगे हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आप जूनियर से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आप अपनी मुश्किल को शेयर करें। और यहाँ खुदा का कलाम बताता है कि वो क्या करे, वो उसको तेल मल के, यहाँ तेल मलने से मुराद ये है कि मसा करना। तेल मसा के लिए इस्तेमाल होता था, तेल मसा के लिए इस्तेमाल होता था। जैसे मसीह खुदावंद ने रोज़े में भी कहा कि सर में तेल डाल। अब यहाँ ये हरगिज़ मतलब नहीं था कि सर में तेल डाला जाए, मतलब ये था कि वक्फ किया जाए, मसा किया जाए, मखसूस किया जाए। और हम यहाँ इसका मफ़हूम, हम इसका मतलब यही ले सकते हैं कि उस पर तेल लगाया जाए या उसको मसा किया जाए, उसको खुदावंद के सामने पेश किया जाए कि खुदावंद इस पर तो रहम कर दे। और यहाँ और आगे लिखा है कि वो दुआ जो हो वो ईमान के साथ हो, और अगर ईमान के साथ होगी तो बीमार बच जाएगा। और यहाँ तक खुदा कर देगा इज्तिमाई दुआ से, उसके अगर गुनाह भी होंगे तो खुदा उन्हें माफ़ कर देगा, उसे उठा खड़ा कर देगा। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर शख्सी दुआ और इज्तिमाई दुआ की ताकत को बयान किया गया है। कितनी ताकत रखती है इज्तिमाई दुआ? इसका मतलब है कि रोज़ाना हम मिलकर घरों में एक दूसरे के साथ दुआ करते हैं। ये दुआ आम नहीं है, ये बहुत ही अहम है, और खुदा की नज़र में ये बहुत ही अहम है, बहुत ही ज़्यादा ये अहमियत रखती है कि लोग मिलकर किसी एक मसले के लिए दुआ करना शुरू हो जाते हैं। वहाँ खुदा काम करता है। और ये रोज़ाना घरों चर्चों में करते हैं, तो दुआ करते हैं। तो याद रखें, आज आप कलाम सुन रहे हैं, हम अपने तरीके को नहीं, खुदा के तरीके को इस्तेमाल करते हैं। और आज मुझे लगता है कि हर इंसान को सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो दुआ ही है। दौलत, शोहरत, तरक्की, कामयाबी, सेहत, ये सारी चीज़ें मेरे अजीज़ों दुआ से आती हैं। और दुआ से जो चीज़ आती है वो बरकत का बायस होती है। और लिखा है खुदावंद की बरकत से जो दौलत मिलती है उसमें दुख नहीं मिलता। मतलब ये है कि खुदावंद की बरकत से जो कुछ भी हमें मिलेगा उसमें दुख नहीं होगा, और बरकत दुआ करने से है। और आगे लिखा है कि 16वीं आयत में, बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। उससे आगे मुसन्निफ बढ़ता है कि अगर कोई दिल में आपको ये आ रहा है कि मैं इस शख्स से नाराज़ हूँ या मेरा ये गुनाह है, मुझे इसके साथ क्लियर हो जाना चाहिए, मुझे इससे सॉरी कर लेना चाहिए या मुझे इसको बुलाना चाहिए, इससे बात करनी चाहिए, तो एक दूसरे से अपने गुनाहों का इकरार कर लेना शिफा का बाइस बनता है। दुआ के सुने जाने का राज यहाँ पर यह लिखा हुआ है कि ताकि शिफा पाओ। कैसे? कौन सी दुआ से? जिसमें इकरार होगा, जिसमें हम नाराज़गी छोड़ देंगे, जिसमें खफकी छोड़ देंगे, जिसमें हम दुआ में दूसरों को माफ़ कर देंगे, जिसमें हम माफ़ी मांग लेंगे। और जितना हम छोटा बनते हैं उतना ज़्यादा हम खुदा की निगाह में बड़े होते हैं, क्योंकि अजीज़ों, माफ़ कर देने से और माफ़ी मांग लेने से कोई भी छोटा बड़ा नहीं हो जाता। और जो माफ़ कर देता है और माफ़ी मांग लेता है उसका दिल भी बहुत बड़ा होता है। खैर, आगे लिखा है कि
चीज़ को वो रास्तबाजी की दुआ कहता है। 16वीं आयत का अगला हिस्सा, आखिरी हिस्सा रास्तबाजी की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। ये यहाँ ये नहीं लिखा कि कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। और फिर मिसाल जो उस शख्स ने दी है वो पुराने अहदनामे का एक ऐसा हीरो जिसको दुआ का सूरमा कहा जाता था, जो कितने कितने घंटे दुआ में ठहरता था, और उसका नाम एलिया है। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था। उसने दुआ की कि महीना भर से 3.5 बरस तक आसमान बंद हो गया था, बारिश ही नहीं हुई, मींह ही नहीं बरसा। कैसा वो खुदा का सूरमा था। और फिर आगे लिखा है कि फिर उसने दुआ की तो आसमान से पानी बरसा और ज़मीन में पैदावार हुई। ये एक इंसान था हमारी तरह का, और यहाँ लिखा है कि हम जैसा इंसान, और उसने दुआ से आसमान बंद कर दिया। असल में मुकद्दस याकूब ये बताना चाहते हैं कि दुआ से बहुत कुछ हो सकता है। रास्तबाज की दुआ से शहर सरफराजी पा सकते हैं। और मेरे अजीज़ों, रास्तबाजी का मतलब भी हमें समझने की ज़रूरत है। रास्तबाजी का मतलब ये नहीं कि हम अच्छे हैं। रास्तबाजी का मतलब ये है कि जिस पर हम ईमान लाए हैं वो अच्छा है, उसका नाम यसू है। याद रखें कि हमारी रास्तबाजी खुदा से है, हमारे नेक कामों से नहीं। यहाँ रास्तबाजी को कौन सी कहा गया है? जो हमें खुदा से ईमान से मिलती है। हम ईमान से रास्तबाज ठहराए गए हैं, और ये उसी रास्तबाजी में ईमान से पूरे भरोसे तवक्कल के साथ जब हम दूसरों के लिए दुआ करते हैं, अपने लिए दुआ करते हैं, खुदा दुआ का जवाब देता है। और आज ज़रूरत है इस बात को सीखने की कि दुआ हमारी ज़िंदगी में सबसे पहले अजीज़ों होनी चाहिए। हम खुश हों, हम उदास हों, हम किसी भी हालत में हों, सबसे पहले दुआ में चले जाएं। अगर आप फील कर रहे हैं कि अब मैंने दुआ कर ली है, अब मुझे दूसरों से भी रिक्वेस्ट करनी चाहिए, उनसे रिक्वेस्ट करें, क्योंकि जो मुश्तरका दुआ है, पूरी बाइबल का मुताला कर लें। मुश्तरका दुआओं ने आसमान को हिला दिया था। आसमान को हिलाने वाली बात यह है, जैसे रूह कुद्दस जब नाजिल हुआ अमाल की किताब के 2 बाब में, तो वहाँ मुश्तरका दुआ हो रही थी। 120 लोग दुआ कर रहे थे, वो एक ही बात के लिए दुआ कर रहे थे कि खुदावंद तूने वादा किया है कि तू रूह को भेजेगा। एक ही बात में वो सारे के सारे मुद्दे हो गए थे, और खुदा ने उन्हें रूह कुद्दस दे दिया। आज जब हम एक हो जाते हैं एक बात के लिए, तो खुदा आज भी काम करता है, क्योंकि याद रखें हमारा खुदा ला तब्दील है, वो बदला नहीं है। वो जो 2000 साल पहले रूह कुद्दस देने वाला खुदा है, वो आज भी वही है। वो जो 4000 साल पहले खुदा था आदम और हवा के दौर में, वही खुदा है। आज वही खुदा मुझे और आपको कह रहा है कि हम अपनी दुआया ज़िंदगी को सबसे स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करें, और जो दुआया साथी हैं उनको सबसे ज़्यादा तरजीह दें, क्योंकि मेरे अजीज़ों, दुनिया के सारे रिश्ते एक तरफ, लेकिन जो दुआया रिश्ते हैं वो सबसे अहम हैं, क्योंकि वो खुदा की निगाह में सबसे अहम हैं। आइए हम उन तमाम साथियों के लिए भी आज शुक्र अदा करें जो हमारे लिए दुआ करते हैं, और इस बात के लिए भी शुक्र करें कि हम भी दूसरों के लिए दुआ करते हैं। ये कोई आम बात नहीं है, ये बहुत बड़ा हम काम हर रोज़ कर रहे हैं। आइए शुक्रगुजारी भी करें और दुआ करें कि खुदा हम में यूं ही दुआया सिलसिले को कायम रखने का फजल दे कि हम एक दूसरे के लिए दुआ करते रहें। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की इस अजीम तसल्ली के लिए कि तेरे कलाम में हमें हर किस्म के हालात में तू अपने बंदा याकूब के ज़रिए फरमाता है कि दुआ की जाए। मुश्किल हो, मुसीबत हो, खुशी हो, गम हो, कैसे भी हालात हो, हम दुआ करें। और फिर आज हमने सीखा कि हम दूसरों के साथ मिलकर दुआ करें। हम तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावंद इस काम को चर्च, घर,
اسکائپ کے ذریعے سے اور مختلف ذرائع سے تو نے ہمیں خدا دیے ہوئے ہیں، اور ہم کر رہے ہیں۔ یہ تیری مہربانی، تیرا کرم ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ خداوند ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تو ہمیں اس کلام میں قائم رکھنا، مسیح کے نام سے آمین۔ خدا آپ سب کو بہت برکت دے۔